नारद ठीक है जो है, तो नारद मुनि के पास ये एक्सप्लेनेशन है। नारद मुनि हैज ज्ञान बट लैक वैराग्य, लाइक दैट। सुत गोस्वामी हैज नॉलेज बट लैक द इनर, एंड सुखदेव गोस्वामी हैड बोथ। तो ये 3 लेवल के श्रोता है। जो सुत गोस्वामी थोड़ा, और जो नारद मुनि है उनको उनका ज्ञान भी है और उनका इनर भी पता है, हाँ? लेकिन एक्सट्रीम जो एक रिनंसिएशन एक्सट्रीम है उसमें थोड़ा कुछ मिसिंग है। जो सुखदेव गोस्वामी है इसलिए उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पीकर है, हाँ? वही भागवतम है लेकिन 3 लेवल के वक्त है। तो सुखदेव गोस्वामी को शास्त्र कुछ और पूरी तरह से विरक्त है। ऐसे ही श्रोता 3 लेवल के, जैसे का ऋषि और वो जिज्ञासु, उनसे हाई लेवल के श्रोता है जैसे व्यास देव, और उनसे भी हाई लेवल परीक्षित, सब कुछ और इसी पहले परपोर्ट में बताया व्हाट इज पर्सनल रियलाइजेशन, हाँ? तो आप लोग पढ़ सकते हैं। Don't wait to read. O Sutta Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Shrimad Bhagavatam, which was spoken by the great and powerful sage Shukadeva Goswami. Sutta Mahabhaga, so is glorifying Shaunak Muni, glorify कर रहे हैं speaker को। Mahabhaga, you are very fortunate. You are very very fortunate because you are blessed. You are blessed by Shukadeva Goswami too. जो सुत गोस्वामी थे, जब वो भागवतम सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, सुत गोस्वामी बैठे थे, हाँ? एंड ही वाज हियरिंग विद सच सबमिशन अटेंशन। सुखदेव, you will speak भागवतम सूत सूतम भागवतम, and you are most qualified to speak this श्रीमद् भागवतम। कथाम भागवती में भगवान की कथा कैसी है? ये सब प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली है। तो इसीलिए कृपया करके आप मुझे हमें बताइए, यद आह भगवान का जो सुखदेव गोस्वामी बोला गया, भगवान सुखदेव गोस्वामी, उनसे जो आपने कथा सुनी वो हमको सुनाइए आप। Prabhupada is writing in the purport, who should speak Shrimad Bhagavatam? ये purport में Prabhupada ने लिखा है who should speak Shrimad Bhagavatam. Yes. So read the last 4 lines. Only one who is prepared from there. Only one who is prepared to present the Bhagavatam in the light of Shukadeva Goswami, and only those who are prepared to hear Shukadeva Goswami and his representative the goal तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई व्यक्ति है, हाँ, तो उसको क्लियर है, पढ़ाई करना जा रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, मतलब मुझे पढ़ाई करना है, यहाँ पे आके मुझे कैरियर बनाना है। ये कोई व्यक्ति है कहीं मार्केट में जाता है, तो उसको कमोडिटी नहीं है, हाँ, कपड़े की शॉप में जाता है, उसको क्लियर है कि मैं कपड़े की शॉप में आया हूँ, मुझे कपड़े खरीदने। ये इसी तरह उसे किराना का सामान लेना है, वहाँ जाता है। But you will find spiritual life is one thing.
why he is coming to the temple. That is what Bhakti Tirth Maharaj is telling, especially for us when we spend some years in consciousness. We have to have a goal for spiritual life. We are not just, जैसे आप मंदिर में देखेंगे कोई घूमते घूमते आ गया, कई लोग हैं आते को फोटो दिखाएंगे तो पूछेंगे, कई बार आ रहे हैं फोटो दिखाओ तो पूछेंगे देखा है विग्रह को, बोलेंगे पूछो का क्वेश्चन कहाँ के विग्रह है, कितने ऑटो वाले आते हैं कभी दर्शन ही नहीं करते, कितने लोग होते हैं इस्कॉन का पार्क बना रखे हैं, वो पार्क है कि टेम्पल कंफ्यूज है, पार्क में घूमते हैं, घूमते हुए चले जाते हैं. So after spending some years in Krishna consciousness, we have to understand what is my goal, why I am practicing Krishna consciousness. We do not progress. We keep doing something. Goal motivates all the efforts. Everything has to be focused towards the goal. Everyone needs a goal in life. Rather than a journey home. If one does not have anything to die for, then he has nothing meaningful to live for. So we should also know the goal. Otherwise, the goal is third. If I want to reach anything I want to do, and so we should have a goal and also the process. Only goal, no process. Then it is a daydream. It's a daydream. So we should have a process. That is why Acharyas have given us the proper what we are supposed to practice. What is the process? Like that. After knowing the process also it's not sufficient. We should know what the price is. Because anything we want, there is some price for it. But we do not want to pay the. Like many times we say that, many times some outsiders say, अरे we want, हम आना चाहते हैं भगवान के मंदिर आना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, right? People say, or even we may also say sometimes, I want to read Prabhupada books, I want to hear, I want to chant, like that. But actually we do not want, because what we want, that we do. What we want to do actually, that we do. So that is why you should know there is a price. There is a price for everything. So that's what he is mentioning here. So now, after glorifying Sud Goswami, now he is asking the question. Kasmin yuge pravarteyam sthane vakena hetuna kuta sanchodita Krishna vidvan samhitam muni. In what period and at what place was this first began? And was this from where the Krishna, Dapa and Vyas, the great sages, get the inspiration to compile this literature? तो पूछ रहे गोस्वामी से कस्मिन युगे कब इसको लिखा गया? They are asking about the history of Shrimad Bhagavatam. स्थाने वा केन हेतुना, like that. कौन से स्थान पे, कौन से लिखा गया और हेतुना क्या कारण था, व्यासदेव को बोलने का क्या आवश्यकता पड़ा? What was the need for Vyasdev to write all that? तो कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिला? कुता संचोदिता कृष्णा. इतने सारे ऑलरेडी व्यासदेव लिखे थे, उसके बाद वापस से व्यासदेव भागवतम लिखा, तो क्या उनको इंस्पायर की ये लिखने के लिए? दिस इज अ क्वेश्चन. तस्य पुत्रो महायोगी संद्रक निर्विकल्पका एकांतमते युन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ैवेयते. This is the translation.
His Vyasadeva's son was a great devotee, an equivalenced monist. His mind was concentrated in monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. व्यासदेव ने जो श्रीमद् भागवतम क्यों लिखा, अब सुखदेव गोस्वामी के बारे में का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है शॉर्ट। पुत्र थे, दस पुत्र महायोगी। हाँ, he was a great devotee of the Lord। प्रभुपाद कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, महायोगी मतलब क्या है, ग्रेट डिवोटी, समदर्प निर्विकल्प का, बैलेंस्ड, ऑनेस्ट, एकांतमति, उनका जो माइंड फिक्स्ड, एंड उन्निद्रो, आचार्य उन्निद्रो मींस आउट ऑफ इग्नोरेंस। उन्निद्रा मतलब उनको नींद नहीं आती थी, इग्नोरेंस से कभी जाते नहीं थे, फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस। हाँ, सुखदेव गोस्वामी मूढ़ ही गए थे, बट वो ऐसे रहते थे, nobody can understand, appeared like a ignorant person। Very beautiful purport Prabhupada has written। Yes, read the purport। Srila Sukadeva Goswami was a liberated soul, and thus he remained always alert, not to be trapped by the illusory energy. In the Bhagavad Gita, this alertness is very lucidly explained. The liberated soul and the conditioned soul have different engagements. The liberated soul is always engaged in the progressive path of spiritual attainment, which is something like a dream for a conditioned soul. The conditioned soul cannot imagine the actual engagements of the liberated soul. Yes. And we find little below in this purport, Prabhupada is writing that a conditioned soul and a liberated soul may apparently appear on the same platform. Huh? May apparently appear on the Same platform. but factually they are differently engaged, and their attention is always alert, either in sense enjoyment or in self-realization. That's why Prabhupada would say there is nobody lazy in this material world. Everybody is active somewhere. हाँ? कोई आलसी नहीं है। कहीं ना इसको डिस्प्ले करने में इशू आ रहा है क्या? If it's not working comfortably, then stop it. If it's not working very comfortably. So he is telling that everybody is active somewhere. Nobody is lazy. Like that. Nobody is lazy. Liberated soul and conditioned soul have different engagements. What is the engagement of a liberated soul? Conditioned soul cannot imagine. So, liberated soul is very alert. जैसे मटेरियलिस्ट होता है ना, बहुत अलर्ट रहता है। What is that श्लोक है? विचयानि विचिन्त्यानि, how it goes? पुनः पुनः। हाँ, जैसे जो मटेरियलिस्ट रहता है बहुत अलर्ट रहता है, पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है, उसको बहुत अलर्ट रहता है मटेरियल लाइफ के लिए। ऐसे ही जो लिबरेटेड सोल रहते हैं, they are alert. The moment should not be wasted in forgetting Krishna. They are very very alert. तो ये सुखदेव गोस्वामी का इंट्रोडक्शन है, कितना पावरफुल इंट्रोडक्शन है। एकदम indifferent to the material creation. दष्टानुयन्तं वृषभजमभ्यनग्नं दष्टानुयान्तं वृषभात्मज देवयादुर्नसुतस्य चित्रं देव्यो हि या तद्वीक्ष्य प्रचलितो जगदुस्तवास्ति तद्वीक्ष्य प्रकृतिमो स्त्रीपुंसुतस्य विवदृष्टे। While Srila Vyasadeva was following his beautiful young girls who were bathing naked, covered their bodies with cloth. Although Srila Vyasadeva himself was not naked, but they had not done so when his son has passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified, and when looking at them, made no distinction between male and female, but that the sage
made such distinctions. So he is telling, तो जो चौथे श्लोक में इंट्रोडक्शन दिया है अब उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ? क्योंकि इतना हाई इंट्रोडक्शन दिया है, तस्य पुत्रो महायोगी, वो बहुत बड़े डिवोटी है सुखदेव गोस्वामी, संग्रह निर्विकल्प का, इक्वल उनका विजन है, कुछ इक्विवेलेंस विजन है उनका, एकदम फिक्स एकांतमति, उनका जो माइंड है वो एकदम फिक्स रहता है ब्रह्मन प्लेटफॉर्म। ये उन निद्रा इग्नोरेंस से फ्री है। उदाहरण दे रहे हैं नेक्स्ट श्लोक, कितना उदाहरण, बहुत पावरफुल उदाहरण, बता रहे हैं व्यास देव जब जा रहे हैं, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है तो क्या तुरंत, हाँ 16 साल तो सुखदेव गोस्वामी के निकले ही नहीं ना, गर्भ से ही नहीं निकले। तो व्यासदेव को प्रॉब्लम टेंशन हो गया, उन्होंने बोला बाहर निकलो, बोला माया है बाहर, सुखदेव गोस्वामी गर्भ से ही नहीं निकले। तो व्यासदेव ने भगवान को बुलाया, तो कृष्ण स्वयं आए, बोलो तुमको माया नहीं पकड़ेगी, कृष्ण गए। तो व्यासदेव ने दिया, सुखदेव गोस्वामी ने नहीं माना, तो फिर कृष्ण स्वयं आए, कृष्ण ने आश्वासन दिया, तो निकले और निकलते निकल ही गए वो लौटे नहीं हो, एक बार निकले तो गर्भ से, तो पीछे पीछे जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे जा रहे हैं, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, जो स्त्रियां स्नान कर रही हैं कुछ निर्वस्त्र हैं, कुछ कपड़े नहीं पहने। सुखदेव गोस्वामी जाते हैं वो अपने आप को कवर नहीं करते, पीछे से व्यासदेव आते हैं, जैसे ही व्यासदेव को देखती हूँ स्त्रियां अपने आप को कवर करने लगती हैं। तो ये श्लोक है, हाँ। तो व्यासदेव ने देखा, अरे मेरा 16 साल का वो जो लड़का है ये एकदम युवा है, हाँ वो गया, इन्होंने अपने शरीर को कवर नहीं किया, और डॉटर की हाँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मुझे इन्होंने कवर कर लिया अपने शरीर को। तो क्या बोलती हैं वो स्त्रियां कि he does not know, ना सुतस, या आपका जो पुत्र है ये स्त्री पुरुष में भेद को नहीं जानता है, विविक्त दृष्टि, हाँ इसका जो विजन है वो फुली विविक्त प्योरिफाइड, हाँ स्त्री और पुरुष में भेद ये नहीं जानता he is seeing only the soul, हाँ इतने पावरफुल सुखदेव गोस्वामी जो थे, इतने पावरफुल थे। कथम मालक्षिता पौरे, कथम मालक्षिता पौरे, संप्राप्ता गुरु जंगला, संप्राप्ता गुरु जंगला, उन्मत्तमूक जड़वत्, उन्मत्तमूक जड़वत् सावे। How Srila Vyasadeva, the son of Srila Sukdev, the son of Vyas, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now Delhi. After entering in the provinces of Kuru and Jangal, appeared like a madman, dumb and retarded. तो इसमें आचार्य जी कथम मालक्षिता पौरे, तो सेजिस पूछते हैं कि कैसे पहचाना सुखदेव गोस्वामी को, जैसे सुखदेव गोस्वामी को कैसे उन्होंने पहचाना, हाँ कुरु जंगल जब वो सिटी में एंटर किए, गज सहावे, हस्तिनापुर हाथी के नाम पे, हस्ती मतलब हाथी, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में सुखदेव गोस्वामी को कैसे पहचाना, क्यों उन्मुक्त मूढ़ मूक जड़वत। To recognize anyone, there are 3 ways. First, you can recognize him if by his stability. स्टेबल व्यक्ति जो रहता है, तो सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, उन्मत्त, इंटॉक्सिकेटेड, जब पागल आदमी रहता है, तो एक पागल है, एक भगवान के प्रेम में पागल है, एक पागल है संसार में, तो जो पागल व्यक्ति है उसको पहचानना मुश्किल रहता है, इसलिए बोले सुखदेव गोस्वामी को कैसे पहचाना है, तो पागल थे, उन्मत्त, मुंह। दूसरा तरीका पहचानने का, जब पर्सन बोलता है, तो सुखदेव गोस्वामी मुंह मतलब बोलते ही नहीं थे कुछ, डम, जनरली बोल सकते थे लेकिन बोलते नहीं थे। और तीसरा क्या है, उसका जो कंडक्ट है, तो जड़वत, सोशल कंडक्ट नहीं, मैड है, तो बोले इसको पहचाना कैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति को पहचाना कैसे। Prabhupada is writing in a purport,
A sage is not therefore recognized by sight, but by hearing. One should approach a sadhu or a great sage not to see, but to hear him. If one is not prepared to hear the words of sadhu, there is no Profit. profit. Like that. Sudama Prabhu has taken seminar on Shravanam. So he is telling, when you hear, then you are near to your most dear and there is no fear. When you hear, then you are near to your most dear. No fear. याद है मुझे? And then he told, in all these, so here, near, dear and fear. What is common is Ear. ear. What is common is ear. Shravanam is very, very important. Like that. So he is telling कि sadhu is recognized by hearing. Like what we are hearing. By hearing we get to understand. तो इसलिए बोल रहे हैं जैसे जो थे पूरी तरह से मूक, जड़वत, डम्ब, कोई सोशल कस्टम नहीं, तो वो कैसे पहचाना सिटी के हस्तिनापुर के लोगों ने? कथम वा पांडवयस्य मुनिनासा संवादा संभूतात सात्वती श्रुति. यत्रैषा सात्वती श्रुति. How did it happen? How did it so happen that King Parikshit met this great sage, making it possible for this great transcendental essence of the Vedas, Bhagavatam, to be sung to him? और परीक्षित से उनका मुलाकात कैसे हो गया? ये क्वेश्चन. तो ये भी साधारण क्वेश्चन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो किसी से मिलते ही नहीं थे सुखदेव गोस्वामी. और सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से विरक्त है. कितने विरक्त हैं तो बताया जा रहा है नेक्स्ट श्लोक में. सबोदोहन मात्रम ही ग्रहमेधिना तीर्थीस्कुर्वन्ति तीर्थराश्रमम्. सबोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रहमेधिना. किसी भी गृहस्थ के घर में कितने रुकते थे? वो दोहन मात्रा में, जितने में गाय का दूध निकाला जाता है. केवल उतनी देर के लिए किसी भी गृहस्थ के वहां पे रुकते थे सुखदेव गोस्वामी. क्यों? सुरेश आसक्ति हो जाती है. तो इतनी देर के लिए क्यों रुकते थे? मात्रा में केवल इतनी देर के लिए. और अवेक्षे थे, और उसके घर का देखते थे. तीर्थी कुर्वन्ति तदाश्रमम्. इतनी देर में ही उसके घर को तीर्थ बना देते थे. सुखदेव गोस्वामी का पोटेंशियल. इतनी देर के लिए रुकते थे और उसके घर को देखते थे. Not because of attraction or affection. लाइक किसी का बहुत सुंदर घर है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, होटल है, देखेगा तो कोई व्यक्ति आकर्षित हो सकता है. बट वो देखते थे, आकर्षित नहीं हुए किसी चीज से, और अपनी प्रेजेंस से उसके घर को तीर्थ बना देते थे. तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज से कैसे मुलाकात हो गया? परीक्षित महाराज तो राजा है, और राजा से तो साधु मिलते नहीं है. चैतन्य महाप्रभु ने प्रतापरुद्र महाराज के प्रपोजल को कितनी बार रिजेक्ट कर दिया. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे सन्यासी कैसे मिलेगा राजा से, कोई काम नहीं है. ये तो राजा के साथ कैसे मिल गए? ये परीक्षित महाराज के पास. ये और उसके बाद दूसरा आश्चर्य है कि परीक्षित महाराज तो राजा है, और सुखदेव गोस्वामी ने ना कपड़े पहने ना कुछ पहने. ऐसे व्यक्ति से परीक्षित महाराज ने प्रश्न कैसे कर लिया? वो कैसे पहचान गए? और तीसरा चीज है कि जो घर में होते हैं, जिसको कोई रोक नहीं पाया, व्यासदेव नहीं रोक पाए, 7 दिन कैसे रुक गए? 7 दिन का
कैंप कैसे अटेंड हो गया। आज के आईटी इंजीनियर को कोई एक दिन नहीं रोक सकता। तो बोले परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कैसे 7 दिन रोक लिया जो इतनी देर के लिए कहीं पे नहीं रुकते। ये प्रश्न। अभिमन्यु सुतम सुता तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृहीणा। अभिमन्यु सुतम सुतम। हाँ, तो अभिमन्यु के जो पुत्र है महाराज परीक्षित, हाँ, प्राहुर्भागवतोत्तमा, और जो भगवान के फर्स्ट क्लास डिवोटी है, भगवान के भक्तों में बहुत श्रेष्ठ है। तस्य जन्म महाआश्चर्य, उनका जो जन्म है बहुत बड़ा आश्चर्य। जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी, हाँ, भगवान ने वापस से जीवित किया। कर्माणि च गृहीणा, उनके जो कर्म है वो भी बहुत वंडरफुल है। उनका जन्म स्पेशल है, कर्म स्पेशल है, मृत्यु भी स्पेशल है। हाँ, ये तीनों कैसे स्पेशल है प्रभुपाद ने परपोर्ट में दिया है। बर्थ ऑफ परीक्षित इज वंडरफुल बिकॉज़ द वूम ही वाज प्रोटेक्टेड बाय द पर्सन ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण। तो परीक्षित महाराज ने पहला दर्शन जिसका किया वो किसका किया? कृष्ण का दर्शन। हाँ, बर्थ के अंदर ही सबसे पहले परीक्षित महाराज ने, और उसके बाद वो जैसे ही निकले उसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, इसलिए उनका नाम एक पड़ा परीक्षित। But there is nothing, nobody like Krishna like that. His activities are wonderful because he chastised Kali like that, and his departure is wonderful because he gave birth to Shrimad. तो his birth was wonderful, his activities was wonderful, and his departure. तो उसके बारे में आप बताइए। तो याद है, क्वेश्चन याद है कि नहीं है? क्वेश्चन पूछूंगा मैं बीच में। हाँ, क्वेश्चन क्या क्या पूछे उन्होंने अभी तक व्यासदेव से? सबसे पहले उन्होंने पूछा व्यासदेव ने कौन सी जगह पे, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन होत्र, कौन सी जगह पे, कौन से स्थान पे, किस कारण से श्रीमद् भागवतम को लिखा, कुता संचोदिता कृष्णा, कैसे उनको ये प्रेरणा मिली कि श्रीमद् भागवतम को लिखना है। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आया है सुखदेव गोस्वामी का, जिनके पुत्र इतने स्पेशल हैं, तस्य पुत्रो महा। वो कैसे रूप थे, सिटी वालों ने कैसे उनको पहचाना, कैसे राजा का मुलाकात हुआ और कैसे राजा के साथ वो 1 हफ्ते रुके, ये प्रश्न का एसेंस है। और अब पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में। तो व्यासदेव के बारे में प्रश्न किया है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में। सा सम्राट कस्य वा हेतु, पांडुना मानवर्धना, प्रायोपविष्ट गंगायां राष्ट्रियम। तो वो जो सम्राट थे परीक्षित महाराज, हाँ, तो किस कारण से गंगा के तट पे बैठ गए? अधिरथ श्रियम, श्रियम मीन्स ऑपुलेंस, सारा ईश्वर दादाजी से अर्जुन वगैरह ईश्वर, उसका अनादर करके, उसको छोड़ के गंगा के तट पे, तो किस कारण से वो जो परीक्षित महाराज से बैठ गए? पांडु नाम मानवर्धना, और जो परीक्षित महाराज थे, कई बार क्या है, किसी का बिजनेस नहीं चला सुसाइड कर लेता है, क्योंकि एग्जाम में टॉप नहीं किया सुसाइड कर लेता है, वाइफ से थोड़ा डाइवोर्स हो सुसाइड कर लेता है। लेकिन के पास साथ ऐसा कुछ केस नहीं था, सक्सेसफुल था। अभी आएगा 2-3 श्लोकों में। तो ऐसे परीक्षित महाराज किस कारण से बैठ गए गंगा जी के तट पे, ये प्रश्न किया जा रहा है। नमन्ति यत्पादनिकेतम् आत्मना, शिवाय हानि धनानि शत्रवा, कथं सवीरा श्रीमन्ददुस्त्यजा, युवैषतोषष्ठमहो सहासुभिः। Read the translation.
He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed kingly opulences that were difficult to give up. Why did he want to give up everything, including his life? नमन्ति यत्पादनिकेतम आत्मना, उनके चरणों में दुनिया भर के सारे राजा शरणागत थे। और शिवाय हानि धनानि शत्रवा, शिवाय ऑस्पिशियसनेस के लिए, अपने वेलफेयर के लिए अपना धन वगैरह सब उनको अर्पण करते थे। हाँ, परीक्षित महाराज का हम सोच सकते हैं हाउ मच ही कमांडेड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द किंग्स लाइक दैट। और उनका भी जो लाइफ था, ऐसा नहीं था कि डायबिटीज था, बैक पेन था परीक्षित महाराज को। ही वॉज फुल ऑफ यूथ एंड स्ट्रेंथ, he was full of youth and strength, he has lot of opulences। ये कैसा उनके पास opulence था, ये सब कथम श्रियम अंग दुस्त्यजम, unlimited opulences he has। ये सब छोड़ के, हाँ, जिसको छोड़ना बहुत दुर्लभ है इस संसार में, एक एक चीज जो ऐसा दुर्लभ है कि इतने लोग फॉलो करें और उसके बाद इतना धन हो, शरीर में भी सामर्थ्य हो। बस धन है तो शरीर में सामर्थ्य नहीं एंजॉय करने का। और शरीर में जिसके पास सामर्थ्य है वो लेबर मेहनत करके लगा हुआ, उसे धन नहीं है उसके पास। ठीक है, हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ क्या स्क्रू ढीला रहता है और फाइनल रिजल्ट सेम रहता है। फाइनल डिलीवरी सबको वही मिलती है, डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन प्रभुपाद जी ने परपोर्ट क्या लिखा है, there was nothing undesirable in his life. First, practically there was nothing undesirable in his life. He was quite young and could enjoy life with power and opulence. So there was no question of retiring from active life. ऐसे परीक्षित महाराज हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी undesirable नहीं था। Why he chose to give up? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, परीक्षित महाराज कौन है? जीवन भगवान के शरणागत भक्त हैं। तो भगवान के शरणागत भक्त रहते हैं। उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, परायण। उत्तम श्लोक का जो परायण है, भगवान का जिन्होंने शरण लिया है, ऐसे जो लोग हैं, जीवंति ना आत्मा अर्थ असो पराश्रयम, तो उनका जो जीवन है वो अपने लिए नहीं जीते। वो क्या है? दूसरों के लिए उनका जीवन क्या है? आश्रय, पर आश्रय। उनका जीवन क्या है? दूसरों के लिए आश्रय। तो वो तो क्या है? शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, they live for the welfare of all the living beings। उनके लिए परीक्षित महाराज थे जिनका जो जीवन था वो दूसरों के लिए आश्रय था। ये, और उन्होंने अपना जीवन कैसे, हाउ कुड ही गिव अप? रीड द ट्रांसलेशन। The personality of Godhead live only for the welfare, development and happiness of others. They do not live for any selfish interest. Even though the Emperor Parikshit was free from all attachment to worldly possessions, how he gave up his mortal body, which was the shelter for others. Yeah. So अभी कोई बोल सकता है कि परीक्षित महाराज क्या डिटैच थे पूरी तरह? बोले वो डिटैच थे, लेकिन क्या है, उनका जो लाइफ है वो बहुत सारे लोगों के लिए शेल्टर है। ये सो वल्लभाचार्य इज राइटिंग इन कमेंट्री, even if the devotee of the Lord gets even if a devotee of Lord gets
related to a gruesome sin, crime, through pride, it is said he should not contemplate at any time to give up his body. Even if due to sinful conduct he is unable to worship the Lord, others can do the service after him, but one should not give up the body. Continuation of such a devotee's life is indeed welfare to many persons. The word Shivaya is indicated that devotees of our Lord should continually live for the peace and happiness of others. So, why, even here at any rate, one should never think of giving up the body. Why? Because the body is capable of originating love for our Lord, the bliss of bhakti. This is an important point. Like that. The body is the highest instrument which can originate bhakti. So that is the point. The point which is told by Vallabhacharya is that devotee's body is very special. Whatever happens, you should never consider committing suicide. So you know that past time Sanatana Goswami has pores all over his body, oozing sores. So Sanatana Goswami's sores were so painful, and 1 year Sanatana Goswami's Lavang Manjari is coming from the spiritual world. But we find even such personalities, by Lord's arrangement, he drank some water, sores all over his body. Pus was coming, it was smelling horrible, it was painful. So Jagannath Puri mein Sanatana Goswami was living with Haridas Thakur. Every day Chaitanya Mahaprabhu would come, he would meet Haridas Thakur and he would embrace. He would embrace Sanatana Goswami would feel so bad because the pus would get on the Lord's body. He was feeling so bad. And Sanatana Goswami would say, "My dear Lord, please do not do this." And Chaitanya Mahaprabhu would say, "For my own purification. I am doing it for my own purification." But it repeatedly happened, so Sanatana Goswami thought it is not proper. So he decided, I will give up my body in coming in front of cart of Lord Jagannath. Like that. And Chaitanya Mahaprabhu knows everything. And then Chaitanya Mahaprabhu chastised him. And Chaitanya Mahaprabhu told, it's not your body. Like that. Through this body I am going to achieve a great task, great accomplishment. Many things are going to happen through your body. It's not your body. Like that. And Chaitanya Mahaprabhu, what example he gave? Chaitanya Mahaprabhu said, when I embrace you, the dust and other things comes on my body, I never feel any bad. Like that. And he gave an example like sometimes the mother is keeping a child on a lap. Child passes stool. Like that. But for mother, that stool is as fragrant as an agru. Agru, you know, we just put on the Lord. So mother doesn't feel bad. That example is given to Sanatana Goswami. Like that. So this is their question, that how could he give up the body? तत्सर्वं न समाचक्ष्वा यदीह किंचन अन्यत्र छन्दसा. We know that expert in the meaning of all subjects except some portions of the Vedas. And thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. Yes. Samachakshva, you clearly explain. Tat sarvam na samachakshva. क्वेश्चन खत्म हो गए उनके. अब वापस से बोल रहे हैं सुध गोस्वामी जी, आप कृपया करके बताइए. Why? मन्यताम, आपको सब पता है, कुछ सब्जेक्ट छोड़ के. हाँ, क्योंकि सुध गोस्वामी वो ब्राह्मण परिवार के नहीं थे. पहले वेदों को हर कोई नहीं पढ़ता था. तो कुछ चीजें छोड़ के आपको सब पता है. हाँ, लेकिन यू स्नातम अन्यत्र छंदसा. हाँ, स्नातम means you know, you are fully acquainted with the ability to explain. Like that, you have all the qualification, even though you don't know certain things. Like that, but you know the sense, which is Shrimad Bhagavatam.
like that. It is a crest jewel. It is a crest jewel, Shrimad Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam is so special because who is there? Amazing setting is there. Guru is sitting down and disciple is sitting up. Sukadeva Goswami is speaking and Vyasadeva is listening. तो गुरु जी नीचे है और डिसाइपल ऊपर है और जो गुरु के भी गुरु है वो भी नीचे है नारद मुनि. So such eminent speaker, that is one speciality of Shrimad Bhagavatam, and such an exalted hearer like Parikshit Maharaj, that is another speciality of Shrimad Bhagavatam, and such an elevated audience. वो सारे ऑडियंस में सब ऑथर्स ही बैठे हुए. वो जो श्रीमद् भागवतम की कथा चल रही है, किसी ने ऋग्वेद लिखा है, किसी ने यजुर्वेद लिखा है, किसी ने अथर्ववेद लिखा है, संहिता लिखा है, वो सब लोग बैठे. हाँ, and Sukadeva Goswami, 16-year-old, full with love of Krishna, intoxicated in love of Krishna, he is speaking. Very, very special, like that. So now they are requesting, please speak. Sutavacha, Brahpare Samanupratye Uparye Jata Parasharadyogi Kalaya Hare Vasavyam Kalaya Hare. तो सुत गोस्वामी second millennium overlap the third, जो रहती है. हाँ, so the great sage Vyasadeva was born to Parashar. सत्यवती के गर्भ से जो व्यास है उनका जन्म हुआ पराशर मुनि के द्वारा. सा कदाचित सरस्वत्या स्पृश्या जलम शुचि एकासीना रविमंडले. तब उसके बाद सा कदाचित एक समय पे सरस्वती नदी के तट पे उत्प्रश्या जलम शुचि, हाँ, सनराइज के समय रवि मंडले, तो वहां पे जल से मॉर्निंग ड्यूटीज करके मॉर्निंग एब्लूशंस के द्वारा पवित्र होके एक जगह पे जो व्यासदेव थे वो बैठे. मतलब बहुत ही स्पेशल जगह पे. तो व्हाट इज गिवन अबाउट दिस इज कि दे टू विविक्त दिस द वर्ड्स dawn of the sun indicate that ablutions were performed before the dawn, and these words also indicate star, auspicious star and sacred time when he was sitting alone. हाँ, इसलिए जो मॉर्निंग टाइम है आप देखते हैं बहुत स्पेशल टाइम रहता है. तो व्यासदेव पवित्र नदी के तट पे पवित्र समय में पवित्र मुहूर्त में अकेले बैठे. परावरज्ञा सारिषि काले नव्यक्तरम हसा The great sage Vyasadeva saw anomalies in the duties of the millennium. Yes. This happens on the earth of different ages due to the unseen force of time. तो जब वो मेडिटेशन करने में बैठे तो परावरज्ञा मतलब भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले व्यासदेव. हाँ, ऐसे व्यासदेव जब बैठे तो उन्होंने क्या रम हसा ग्रेट फोर्स व्यतिकरम एनोमलीज. जब वो मेडिटेशन करने देखे तो उन्होंने देखा कि काल के प्रभाव से, काल में बहुत शक्ति है, उसके प्रभाव से उन्होंने देखा एनोमलीज जो फ्यूचर में होने वाली है. कलयुग में जो एनोमलीज मतलब एक्सेप्शंस जो होने वाले हैं. तो आप देखेंगे भागवतम के पहले स्कंद के युधिष्ठिर महाराज देखते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि कृष्ण पृथ्वी पे नहीं है. तो वहां पे आता है कि वो देखते हैं कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, और कहीं देखते हैं झगड़ा हो रहा है थोड़ा बहुत. हाँ, वो देखते हैं कि बारिश सीजन समय पे नहीं आ रहा है, सीजन्स में इरेगुलरिटीज हो गई है, बिजनेस में चीटिंग हो रही है. हाँ, वो देखा जा रहा है. तो ऐसे करके 15-20 सिम्टम दिए.
तो वो समझ जाते हैं कि कृष्ण पृथ्वी को शायद कलयुग आ गया। सो दीज आर द इंडिकेशन गिवन। तो अव्यक्त जो काल की शक्ति होती है उससे सब चेंज होता है। सो टाइम इज अ वेरी वेरी पावरफुल फोर्स लाइक दैट। So Prabhuji is explaining this effect of Kala is very important to understand. तो ये भीष्म पितामह जब देखते हैं इतनी sufferings, अहो कष्टम अहो न्यायम यदि यूयं धर्मनंदना जीवितं नरहता क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रय। अहो कष्टम अहो अन्यायम, देखते इतना पांडवों को देखते हैं। भीष्म पितामह खुद पांडवों के शरीर में लेकिन वो उनको कंसोल कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में मिलने आए हैं। अहो कष्टम अहो न्याय, इतना इनजस्टिस हुआ, इतना अन्याय हुआ धर्म नंदन आप लोगों के साथ। जीवितम नर, और कोई रहता तो जीवित नहीं रहता था, इतने कष्ट में आदमी रहता था। लेकिन आप लोगों ने विप्र धर्म और अच्युत का आश्रय किया। आपको इतना कष्ट हुआ, कुंती को इतना कष्ट हुआ, तो क्यों आपको इतना कष्ट हुआ उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम चेता प्रियम सपालो यद्वशे लोको वायुरेव घनावली। बोलते हैं ये काल का प्रभाव है, सर्वकाल कृतम मन्ये, ये भीष्म पितामह का जजमेंट है। जो समय आता है क्या हो जाता है, सब समय की बात है। नहीं, सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम चेता प्रियम, तो हमको प्रिय लगे नहीं लगे कुछ भी हो, सपालो यद वशे लोको, जितने लोग हैं उनके जो लोकपाल हैं, जो बड़े बड़े कंट्रोलर हैं, दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय टाइम। दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय टाइम। जैसे वायु जब आती है हवा से बादल को उड़ा के ले जाती है, ऐसे ही समय के प्रभाव से थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। तो ये जो काल है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके जीवन में वो डिलीवरी करता है। किसकी डिलीवरी करता है? उसके एक्शन की, रिएक्शन की। जो भी उसने एक्शन किया, जो फल है, कर्म का जो फल है, उसकी डिलीवरी करता है। रिएक्शन ऑफ कर्म। लेकिन जो डिवोटी की लाइफ में तो काल जो है उसमें कृष्ण का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। कृष्ण का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है डिवोटी की लाइफ में। सो भगवान डिवोटी की लाइफ में एक बार जब हम चैंटिंग हरे, द मोमेंट वी वंस, द मोमेंट अ डिवोटी स्टार्ट्स पुटिंग अ हैंड इन द बीट बैग एंड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्णा's इंटरवेंशन स्टार्ट्स इन हिज लाइफ। अब उसके बाद उसके जीवन में कुछ भी होता है, भगवान अरेंजमेंट करते हैं कैसे भी करके। जैसे शिक्षाश्रम बुक यूजेस एग्जांपल, जैसे you are going and your GPS is on, Google map is on, right? But still sometimes we take wrong turns like that. But even if you take wrong turn, the Google map recalculate and recalibrates. वो वापस से कैलकुलेट करता है, वापस से कैलिब्रेट करता है, अगेन आपको क्या है वो सही डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करेगा। इसी तरह जब हम भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन भक्ति चाहते तो है नहीं, आ गए हम, we slipped into bhakti, we just slipped into bhakti, somebody pushed us, somebody pushed us. You know now that one person was there, he told that whoever will cross this, whoever will cross this channel, English channel, I will make my daughter marry, like that. Whoever will cross, like that. Finally one person crossed. Like, oh, you are a wonderful person, so brave and so much courage you had, you crossed. I'll give the hand of my daughter to you. So he said, first tell me who pushed me. And that's how you slipped in bhakti. But what happened? Krishna takes it seriously. He took Krishna seriously, but Krishna recalibrates and recalibrates. Like, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे डिवोटीज वो छोड़ के जाना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार
भगवान कहाँ कहाँ डिवोटी चले जाते हैं, बट you find that Gauranga gives example one devotee and then he left temple like that. And he gives example then once he went to movie theater. उसने सोचा पहले जो अकाउंट पहले बहुत चीजें हो गई हैं कवर किया जाए. And then he found devotees came for devotees. Devotees कहीं नहीं जा सकते like that. Similarly, he was example of devotee and he thought I had too much austerity in the temple. I have to leave the temple, left the temple. And previously he was surfing, surfing, skates, sea and all that they do on the boats, the skateboards. So then he thought, let me do. So he left the temple, came and then he was surfing. And suddenly he had a darshan of shark, which is most dangerous, right? But he remembered the formula, Narsimha. And then he thought, this is not good, I have to. Krishna gives indications. And per recalculates, we do so many mistakes. Krishna doesn't leave us. He recalculates, recalibrates, always help us to come back. So Kala act as a purifier. Kala act as a punisher for karmis. For sadhakas, Kala act as a purifier. And for the pure devotees of the Lord, Kala is just the wish. Pure devotees like to कभी suffering आ रही है, कोई गलती नहीं है उसमें, mistakes नहीं है, कोई sin नहीं है. It's just a wish of the Lord to glorify them and to demonstrate them. And now the further Shloka explains what are the symptoms of Kali Yuga. Bhautikānām ca bhāvānām satkritam Shraddhānāne sattvām Vedānrasitāyushā Durgādām janānviksha मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां The great sage, who was fully equipped in knowledge, could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of the age. He could also see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to the lack of goodness. Thus he contemplated for the welfare of men in all status and orders of. भावनानां च भावनानां शक्तिहासं च तत्कृतं. तो कलयुग में क्या है? शक्ति रासन सबसे पहला. हाँ, लोगों में शक्ति बहुत कम रहेगी. शक्ति क्या है? बहुत कम हो जाएगी. Just 2 years back, we hear that Shivaji Maharaj's 75 kgs of sword, 150 kgs of armor. इतने लेके कूद के वो घोड़े पे बैठते थे. और फिर ऑफकोर्स लेकिन लोग जाके सेल्फी करके नीचे फाइट आल्सो. शक्ति रासम च तत्कृतं. कलयुग don't have ashaddanan. People are faithless. People do not have faith. People do not have faith in Shastra. You will find difficult. As the age is progressing, a challenge. Previous age, you will find people have a lot of faith in Shastras. But Kali people are faithless. Like that. So everything when you require proof, life becomes very complex. When there is love and trust, policies. You need to have minimum policies. You need to have minimum communication. And you will have minimum complexity. Like that. When it's the age of faithlessness. Like that. So everywhere there are CCTV cameras, even in temple there are CCTV cameras. Like that. There's no faith. Like that. That's why you need frequent communication. Mobile, WhatsApp.
WhatsApp में you send the mobile, then it says 1 and then 2 writes come message has reached. And if it has become blue and you have not received reply in 5 minutes. Nisattva and impatience. Yeah, 10 times wife or husband or girlfriend, boyfriend, whatever, they'll say I love you and all. But there's no love, there's no trust. Like that, much. Like that. Because there is nisattva, there is impatience in Kali Yuga. Like that. Rasit Ayusha, and the duration of life is reduced. Durbadha. तो अगर किसी को सीवी बनाना है कलयुग में, किसी का भी जो बायोडाटा जो भेजते हैं कंपनी के क्या बायोडाटा, ये नाम है और भौतिका नाम जो भावा नाम शक्ति रासम ये भाई मेरा सीवी है। अश्रद्धदान सत्पान दुर्मेधान रसित आयुषा। अब आप कुछ जवाब देना चाहते हो तो देखो। The unmanifested force of time was so powerful that they reduced all matter to oblivion in course. Prabhupada is writing a very beautiful purport like that. So Prabhupada is writing, in this age the duration of material body of the people is in general is reduced, and memory also. The action of matter also does not produce food. Cow does not give as much milk as it used to give. Due to want of so many necessities, naturally the reduced. Memory is short, intelligence is meager, mutual dealings are full of hypocrisy, and so on. This is Kali Yuga. This is Kali Yuga. This is the essence what is Prabhupada is writing in his beautiful purport. Like that. So Vyasdev could foresee, Vyasdev could see everything. So that is why then he starts working.